to all of God's beloved. Grace and peace to you in the name of our Lord Jesus Christ. I thank God for the blessing of being part of God's global community. And I thank the Dauntless Pulpit for inviting me to share with you today. Let us pray that my words today strengthen us in our walk with Christ. परमेश्वर के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी आशीष दी और मुझे डॉन्टलेस पुलपिट के साथ जोड़ा इस समय में। और मैं जो आपके साथ जो वचन बांटूंगी, मैं आशा करती हूँ कि उसके द्वारा आप लोग आशीष पाएंगे और परमेश्वर के साथ और नजदीकी में पड़ेंगे। I invite you to turn to Mark chapter 13, verses 5 to 8 and 28 to 37, the passages upon which I have based this meditation. Then Jesus began to say to them, "Beware that no one leads you astray. Many will come in my name and say, 'I am he,' and they will lead many astray. When you hear of war and rumors of war, do not be alarmed. This must take place, but the end is still to come. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in many places, and there will be famines. But this is the beginning of the birth pain." मैं पढ़ूंगी मरकुस की इंजील उसका 13वां अध्याय 5वें पद से 8 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम में आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनो तो न घबराओ, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और कई भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। From the fig tree learn its lesson. As soon as its branch becomes tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So also when you see these things take place, you know that he is near, at the very gates. Truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. और उसी पद का 28वां अध्याय से लेके 33 अध्याय तक, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी, तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वे अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। But about that day or hour, no one knows, neither the angels in heaven nor the Son,
but only the Father. Beware, keep alert, for you do not know when the time will come. It is like a man going on a journey, when he leaves home and puts his slaves in charge, each with his work, and commands the doorkeeper to be on the watch. Therefore, keep awake, for you do not know when the master of the house will come, in the evening, or at midnight, or at cockcrow, or at dawn, or else he may find you asleep when he comes. Suddenly he will come. And what I say to you, I say to all, keep awake. We have a social responsibility to stay informed and to be awake to the needs of the world so that we can be Christ's presence in the world. If we're voting in elections, we should know the record of the person for whom we are voting and what their intentions are. We should know what is happening locally, nationally, and internationally, what the cause of any emergency is, and how best to respond and to demand the best from ourselves and our leaders. ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो हमें सूचित रहना है और जागते रहना है दुनिया की ज़रूरतों के प्रति, ताकि हम मसीह की उपस्थिति का एहसास दिलाने वाले हो सके दुनिया में। जब हम किसी को चुनाव के लिए हम किसी को वोट देते हैं, किसी को हम अपना नेता बनाते हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस इंसान के इरादे क्या हैं, कि वो क्या हमारे बेहतरी के लिए करेगा। और वहीं उसी प्रकार हमें स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो चीज़ें हो रही हैं, हमें उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी आपातकालीन परिस्थिति है और हम उसका किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। But if you are like me during the last months, paying attention to the news each day has been exhausting and can drive one to despair. The deaths from COVID-19 have passed 1 million globally, leaving countless others with lasting disabilities and the grief of loss of friends and family members. To make matters worse, the consequences of global climate change are visited upon us in the form of storms, floods, fires, and droughts. और अगर आप मेरी तरह हैं और आप पिछले दिनों में अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि अभी जो हमारी स्थिति है वो बहुत निराशाजनक है। और हमारे जो कोविड जो अभी चल रहा है उसके वजह से कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, परिवारों के सदस्यों को खोया है, अपने प्रियों को खोया है। और इसी चीज़ को और ज़्यादा जो चीज़ इस चीज़ को ख़राब बनाती है वो ये है कि मौसम में जो बदलाव हम देखते हैं, बहुत जगह पे तूफान है, अकाल है, बहुत जगह पे बाढ़ भी आई है। Moreover, we know what Jesus means when he describes living in a time when we hear of wars and rumors of wars. The global community was disturbed by the news of violent conflicts and standoffs between Chinese and Indian soldiers along their shared border. The whole world feels a sense of anxiety and looks for some sort of superhuman or divine intervention because human effort alone is not adequate to the challenge. और हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह है वो इस बात का ऐसे समय का वर्णन करते हैं कि जब युद्ध होगा और युद्ध की अफवाहें होंगी, और हम देखते हैं कि किस तरीके से वैश्विक समुदाय में भी जो अपने हिंदुस्तान है, जो इंडियन है और जो चाइनीज सोल्जर्स हैं, हम देखते हैं कि बॉर्डर पे भी किस तरीके से चीज़ें खराब हो रही हैं और कैसा माहौल बना हुआ है इस समय में। तो हम जो पूरे स्थिति है हमारे आसपास वो एक बहुत चिंतित स्थिति है, और इस समय में हम ऐसा अनुमान करते हैं कि कोई उत्तम मनुष्य आएगा, कोई सुपर ह्यूमन आएगा या ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से ये जो मनुष्य प्रयास है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं,
हम उसको पूरा कर सकेंगे. In one of my favorite films, Fiddler on the Roof, when the organized and state-sponsored attacks against Jews living in Russian territory in the late 19th century become increasingly violent, the community is forced to leave their homes, farms, and businesses. A young man then asks the rabbi, "Rabbi, we have been waiting for the Messiah all our lives. Wouldn't now be a good time for him to come?" To which the rabbi responds, "I guess we'll have to wait somewhere else." मेरी एक बहुत पसंदीदा मूवी है जिसका नाम है फिल्डर ऑन द रूफ, जो कि आयोजित की गई है जो ऐसे समय में जहाँ पे यहूदी लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा था राज्य के द्वारा, और बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया गया, बहुत सारे लोगों ने अपना जो व्यापार था उसको छोड़ दिया. और इस समय में एक जवान व्यक्ति आके रब्बी से पूछता है कि हम जिस मसीहा का जो इंतज़ार कर रहे थे, तो क्या अभी उसके आने का सही समय नहीं है? तो जिस पे रब्बी जो है वो उसका उत्तर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें कहीं और जाके इंतज़ार करना चाहिए. In today's sermon, I invite you to reflect upon the importance of patient waiting as Christians and what we are called to do and not to do as we wait. आज का जो मेरा विषय है, मैं चाहती हूँ कि हम इस बात पर ध्यान लगाएं कि धैर्यपूर्वकता से रुकने का क्या महत्व है, और हम जो विश्वासी लोग हैं हमें उस समय में रुकने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Wars and rumors of wars are a common feature of apocalyptic prophecy, but they are also part of historical experience. When have we lived in a time of peace without fear of impending conflicts? War is not a sign of God's inbreaking reign. War, famine, and disease are part of the age-old struggle against God's reign. हम जो युद्ध के बारे में सुनते हैं और जो अफवाहें हैं युद्ध लड़ाइयों के बारे में, ये अंत के दिनों की भविष्यवाणी है जो कि एक इतिहास का भी हिस्सा है. और हमने हमेशा हम ऐसे समय में रहे हैं जहां हम डर में जिए हैं, हम अशांति में जिए हैं. तो ये जो युद्ध है ये और उसकी अफवाह एक समय का ये विशेषताएं हैं कि अंत के दिनों की भविष्यवाणी, और एक इतिहास का तजुर्बा भी है कि हमें किस तरीके से आगे अपने आप को आगे किस तरीके से तैयार करना है. The first audience of Mark's Gospel were living through the Jewish revolt that would end with the Roman destruction of the temple in Jerusalem in the year 70 AD. This revolt was led by self-anointed leaders who believed that the war was the means by which God's reign would be established. जो मरकुस की इंजील है उसके जो पहले दर्शक थे, वो जो यहूदी लोगों के खिलाफ जो विद्रोह था वो तब खत्म होता जब यरूशलेम के मंदिर का विनाश होता. और ये जो विद्रोह था वो ऐसे नेताओं के द्वारा था जो अपने आप को स्वयं ही उन्होंने अपने आप को अभिषिक्त किया और अपने आप को ही नेता बना दिया था. As Christians, we follow a Messiah who calls us to trust in God rather than our own swords. When Jesus instructs his disciples in verse 7, "Do not be alarmed," Jesus is not describing emotional responses, but rather is saying, don't let this news excite you into inappropriate actions, such as following those who claim to be Christ returned or divine agents. तो हम जो मसीही लोग हैं, हम बुलाए गए हैं मसीहा को, जो मसाया है उसको हमें
उसके पीछे चलना है और अपना जो विश्वास है वो हमें खुदा में रखना है, ना कि इन सब बातों पे। यीशु मसीह भी अपने चेलों से कहते हैं, आयत 7 में जो हमने पढ़ा कि घबराओ मत, तो ना घबराओ। और वो कहता है कि एक तरीके से भावुक मत हो। ये सब चीज़ों को देख के हमें भावुक नहीं होना है, और ये सब चीज़ हमें किसी किस्म की अनुचित चीज़ों को करने के लिए हमें बढ़ावा ना दें। In our modern context, we must take Jesus' warning to heart by not falling prey to conspiracy theories that fly around the world at lightning speed via the internet. During the 2016 American election, a rumor spread that Comic Ping Pong, a pizza restaurant in Washington, D.C., was the center of a child trafficking ring. One man in North Carolina, upon hearing the false rumor, jumped into his car with his loaded rifle, drove 500 kilometers north, and fired 3 shots into the restaurant, thinking he was going to be a hero and rescue children. और अभी के अगर हम देखें आधुनिक समय में जब हम हैं, तो जो यीशु मसीह की जो चुनौतियां हैं, हम उस पे कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसी अनुचित चीज़ें जो हम देखते हैं, जो हमें इन बातों का शिकार बना देती हैं, और हम नहीं जान पाते कि असल में जो सही बात है वो क्या है। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि अमेरिकन जब इलेक्शन हुए थे 2016 में, तो ऐसी एक अफवाह फैली थी कि एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे बच्चों का अवैध व्यापार होता था, ऐसी अफवाह फैली। और उसी को सुनते ही एक आदमी था नॉर्थ कैरोलिना से, वो इस अफवाह को सुन के वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी गाड़ी ली और वह बंदूक लेके गया। उसने 500 किलोमीटर तक उसने उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे ये रेस्टोरेंट था, और वहाँ पे उसने 3 लोगों को गोली मार दी, ये सोच के कि वो उन बच्चों को बचा लेगा और अपने आप को वो एक तरीके से एक हीरो साबित कर देगा। In 2018, a rumor spread around India via WhatsApp about roving bands of kidnappers snatching young village children to harvest and sell their organs. The report was illustrated with a picture harvested from a news story about chemical attacks in Syria in 2013. As a result, when 4 men traveling on a bus through Rainpada and Maharashtra offered a village child a biscuit, they were viewed by witnesses as a threat and beaten to death. ऐसा ही एक और चीज़ हम देखते हैं 2018 में जब हुआ कि एक ऐसी ही अफवाह फैली व्हाट्सएप के द्वारा हिंदुस्तान में कि एक समूह है लोगों का जो कि जवान बच्चों को गांव से उठा लेते हैं और उनके अंग को बेच देते हैं। और जो चित्र जो इसके द्वारा व्हाट्सएप पे लोगों ने देखा, वो असल में इसका चित्र नहीं था, परंतु एक केमिकल अटैक जो हुआ था सीरिया में 2013 में, उसकी चित्र था जो सर्कुलेट हुआ, जो व्हाट्सएप पे जो लोगों ने देखा। और उसी का परिणाम हम देखते हैं जब 4 लोग महाराष्ट्र में एक बस में सफ़र कर रहे थे और बीच में उन्होंने एक गांव के बच्चे को बिस्किट दिया। तो जो लोग देख रहे थे ये दृश्य को, उनको ये एक तरीके से खतरा दिखाई दिया और उन्होंने मिलके ये 4 लोगों को जान से मार दिया। In this time of COVID, conspiracy theories such as the virus being a hoax perpetrated by the pharmaceutical industry in order to make money from a vaccine makes people feel helpless, less helpless, and anxious. Conspiracy theories point the finger of blame and encourage people to act irrationally as though they are God's agent of just judgment. और अभी जो हम कोविड के टाइम में हैं, तो बहुत सारी ऐसी साजिश हमें सुनने को मिल रही है कि ये जो एक वायरस है
वो एक तरीके का छल है जो कि लोगों को दिखाया जा रहा है, जो कि ऐसे दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो वैक्सीन बनाने के द्वारा इससे लोगों को एक तरीके से प्रोत्साहित कर रही हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है और एक पैसे बनाने का यंत्र बन गई है। और इस साजिश में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि लोग युक्ति पूर्वक इस समय में कार्य करें और परमेश्वर के द्वारा एक तरीके से न्याय के यंत्र बन जाएं। Instead of believing in baseless theories, as Christians, we are called to look about us, not to point fingers of blame, but to see who is suffering as a consequence of the evils of this age. In Matthew 25:31-36, Jesus calls us to feed the hungry and clothe the naked, and not to ask why they do not work harder to pay their own way. Jesus calls us to visit the sick and those in prison, and does not ask us to ask what they have done to cause their state of confinement. और हम लोग जो हैं, हम ये सब चीज़ों में अपना विश्वास ना लगा के, परंतु जो हम विश्वासी लोग हैं, हमें इस सब से ऊपर देखना है और किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना है, परंतु ये देखना है कि जो लोग इस समय में पीड़ा में हैं, उनके ऊपर बुराई का किस प्रकार से उनके ऊपर असर हुआ है। और मत्ती 25 में भी यीशु मसीह कहते हैं कि लोगों को जब वो खाना खिलाते हैं, लोगों को कपड़े देते हैं, तो वो उनसे ये नहीं पूछते कि तुमने मेहनत क्यों नहीं करी या तुमने अपने तरफ से कुछ क्यों नहीं किया। तो उसी प्रकार से यीशु मसीह हमें भी कहते हैं कि हमको भी जो लोग बीमार हैं उनकी देखभाल करनी है और हमें उनसे ये नहीं पूछना कि उनकी दशा किस वजह से है या क्या कारण है कि वो इस स्थिति में है, परंतु पूर्ण रूप से हमें खुले मन से उनकी सेवा करनी है। I find inspiration in the stories of the early church. During the plague of Galen, a pandemic that began in 165 AD and lasted 15 years, when 10 to 25% of the Roman Empire's population died, political leaders and pagan priests, and even Galen, the doctor for whom the plague was named, fled the cities for their secluded rural villas and the safety of isolation. एक ऐसी ही कहानी शुरू की कलीसिया, जो पहले की कलीसिया थी, वो ऐसी कहानी मुझे बहुत प्रेरणा देती है, जो कि प्लेग ऑफ गेलिन, जो एक महामारी है, उसके ऊपर आधारित है, जो 165 एडी में हुई थी और 15 साल तक चली थी। और इस महामारी में 10 से 25% जो रोमियो लोग थे, जो रोमन्स थे, वो लोग मारे गए। और जब इसका इल्ज़ाम लगाया गया जो नेता लोग थे, जो याजक लोग थे और जो डॉक्टर्स थे उनके ऊपर, तो वो वहाँ से भाग गए। Christians, in contrast, did not fear death in the same way. They had taken Paul's teachings from Romans 8:38-39 to heart, that neither death nor life nor anything in creation could separate them from the love of God in Christ Jesus. लेकिन जो विश्वासी लोग थे वो मौत से नहीं डरे, परंतु उन्होंने पौलुस की जो उसने शिक्षा दी थी उसको उन्होंने लिया, जो कि पाई जाती है रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में 28 पद में, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रतिनदाय, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। Not fearing death, the Christian leaders stayed behind to nurse the sick. As a result, under Christian care,
Many more, the sick survived in greater numbers, and Christians filled the leadership void. Sociologist Rodney Stark has argued persuasively that Christianity grew significantly during times of plague. As Christians, we are called to bring calm and to avoid adding to the chaos of war and rumors of war. और क्योंकि उन लोगों ने मौत से वो लोग नहीं डरे, तो बहुत सारे ईसाई जो ऐसे नेता लोग थे वो वहाँ रुक गए और उन्होंने जो लोग बीमार थे उनकी देखभाल करी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग थे जो इस महामारी से पीड़ित थे, वो लोग बहुतायत के गिनती में बचाए गए। और वो लोग जो वहाँ रुक गए थे, उन्होंने जो याजक लोग जो चले गए थे वहाँ से, उनकी जगह ले ली। और रॉडनी स्टार्क करके जो एक व्यक्ति हैं, वो भी ये कहते हैं कि उस समय में जो ईसाई लोग थे वो इस प्लेग के समय में ही वो बहुतायत की गिनती में बढ़ गए। तो हम लोग भी एक जो हम लोग विश्वासी हैं, हम लोगों को बुलाया गया है कि हम इस समय में शांति पूर्वक रहें, ना कि ये सारी अफवाहों से सुन के हम लोग इसके द्वारा हम लोग अपने आप को ऐसे अस्तित्व उस समय में अपने आप को रखें। Throughout Christian history, many false prophets have arisen and claimed that they were able to read the signs of the times and predict exactly when Christ would return. A few have even led their followers to believe that they were the Christ and to turn aside from moral duties and teachings. तो इस समय में भी इस पूरे हम जब देखते हैं कि इतिहास में अपने मसीही इतिहास में जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता थे जो कि अपने आप को उन्होंने बोला कि मैं मसीह हूँ, और उन्होंने इस समय का एक लोगों को बताया कि मसीह कब आएगा, एक तरीके से झूठा ऐलान किया। और बहुत सारे ऐसे थे कि उन्होंने अपने आप को मसीह बताया और उनके जो चेले थे उनको अपनी ओर खींच लिया। In my own Mennonite Anabaptist tradition, we take warning from an event early in our history. From 1534 to 35, a group of early Anabaptists seized control of the city of Munster in Germany in an apocalyptic fever. One of their leaders proclaimed himself David's successor and turned his sword to his own female followers when they did not comply with his sexual demands. Other Anabaptist communities recoiled from this violence and have since sought to follow Jesus' message of nonviolence. मेरे अपने जो मेनोनाइट एनाबैप्टिस्ट की परंपरा है, और उसमें हम लोग चेतावनी लेते हैं ऐतिहासिक ऐसी चीज़ों से। और हम देखते हैं सन 1534 और 35 में जब एक एनाबैप्टिस्ट लोग जो थे उन्होंने नियंत्रण किया एक जो सिटी मुंस्टर जो कि जर्मनी में है उसके ऊपर। और उसका जो एक नेता था उसने अपने आप को दाऊद का उत्तराधिकारी बताया और बोला कि मैं जो हूँ वो दाऊद का उत्तराधिकारी हूँ, जिसके वजह से उसने बहुत सारी जो महिलाएं थी उनका फायदा उठाया। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके द्वारा I could not find any comparable stories from India's Christian history. Perhaps the Christians of India are more sensible. Now we await Christ's coming on God's time. और मुझे हिंदुस्तानी इतिहास से कोई ऐसी बात मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी लोग शायद बहुत समझदार हैं और अब जो है हम यीशु मसीह का आने का इंतजार करते हैं खुदा के समय में। As human beings, we live by calendars. We have watches so that we know exactly when our workday begins and is over.
And when a plane or a train is supposed to arrive and depart, we like to know when to expect that our work and knowledge will be examined. We like to know the date by which work must be completed. हम जो मनुष्य हैं, हम लोग कैलेंडर जो है जिसमें हम रोज डेट्स देखते हैं, हम उसके द्वारा जीते हैं और हमारे पास घड़ियां भी हैं जिसके द्वारा हम निरंतर समय देखते रहते हैं और हमें पता है कि हमें कब क्या करना है उस समय के अनुसार से. We would like friends and family to let us know when they plan to come to visit so that we can tidy up our houses and prepare to make them feel welcomed. We do not like to be caught off guard with messy hair and still wearing our pajamas in the middle of the morning. और हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे परिवार के लोग हैं और जो सदस्य हैं वो एक योजना बना के हमारे घर पे आए अगर वे आते हैं, और हमें नहीं पसंद आता कि जब वो हमारे घर पे आए और हम तैयार ना हो और हमें ना पता हो कि वो आने वाले हैं. The return of Christ does not fit into our plans and calendar at our convenience. Jesus uses the analogy of the fig tree to teach his disciples not to look for signs, but rather to trust in the surety of God's promise. The new growth of the fig tree indicates that the tree will bear fruit. In verse 31, Jesus says, "Heaven and earth will pass away, but my words shall never pass away." Like the promise of spring and summer, we can count on Jesus' words. तो यीशु मसीह के जो आने का समय है वो शायद हमारी योजना के अनुसार नहीं है, या वो ये यीशु मसीह ये देखकर नहीं आएंगे कि कब हम तैयार हैं. जो यीशु मसीह जो अंजीर के पेड़ का जो दृष्टांत दिखाते हैं, जो अपने चेलों को बताते हैं, वो यह है कि वो चिन्ह का इंतजार ना करे परंतु पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की वायदों के ऊपर विश्वास करे. और जहाँ यीशु मसीह भी कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी. The analogy of the master's unannounced return corrects any misreading of the fig tree illustration that might suggest that when we see signs of the new life of God's reign, that we can start counting down the days. We can count on God, but God will not give us advance notice. The lack of a fixed date necessitates that we constantly remain awake. तो यहाँ पे यही है जो दृष्टांत जो है इंजीर के पेड़ का, यहाँ पे भी यीशु मसीह हमें यही बताते हैं कि हमें पूर्ण रूप से खुदा पे भरोसा करना है और चौकस रहना है और जागते रहना है. हमें जो चिन्ह हमने देखा दृष्टांत का, जो अंजीर के पेड़ का दृष्टांत था, एक नई जिंदगी का, जो कि हमें ये बताता है कि परमेश्वर का जो शासन है उस पे हमें भरोसा करना है और हमें दिन गिनने हैं पर यीशु मसीह के आने पे और पूर्ण रूप से खुदा पे भरोसा करना है. In the original Greek of Mark 13, Jesus repeats the present imperative "lepeta," be watchful or observant, 4 times, and ends with the repetition of the verb "gregoreo," to stay awake, in verses 34 and 35, building to the emphatic command "gregoreta," stay awake, in verse 37. और अगर हम देखें यूनानी भाषा में भी जो मरकुस 13 में यीशु मसीह दोबारा इस बात को दोहराते हैं कि चौकस रहो, अपनी नजर तेज रखो, और बार-बार वो इसी बात का ऐलान करते हैं. While Jesus means this quite literally when he asks his disciples to stay awake in the Garden of Gethsemane, obviously he does not mean that we should never sleep. The analogy of the absent boss teaches us that wakefulness is a metaphor for uninterrupted, faithful service. यीशु मसीह भी जब अपने चेलों से कहते हैं, गतसमनी के बाग में जब उन्होंने अपने चेलों से कहा
कि जागते रहो, तो उनका यह मतलब नहीं था कि कभी मत सो, परंतु वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं नहीं हूँ तब भी तुम जागते रहो। वो एक तरीके का ये एक तरीके से दर्शाता है कि हमें वफादार रहना है। Jesus' analogy reminds me of the time my husband and I left our home for 4 months in the care of a small group of students. Each had a job to do. One was supposed to weed the garden regularly. Friends keeping an eye on our house noticed that no weeding was done all May, June, and July. But a week before our return, a flock of students appeared and weeded madly all day, but only after the weeds had all gone to seed. Needless to say, I struggled with weeds for several years afterwards. यही एक जो अंजीर का पेड़ का जो दृष्टांत है, ये मुझे एक तरीके की समानता एक बात में बताता है। एक ऐसी गतिविधि जो मेरे साथ भी हुई जब मैं अपने पति के साथ अपना घर छोड़ के गई 4 महीनों के लिए एक बच्चों की देखभाल करने के लिए, कुछ बच्चों की देखभाल करने के लिए। तो हर किसी के पास एक काम था करने को, और वो यह था कि जो बगीचा था उसमें से जंगली घास को निकालना था। परंतु जो हमारे जो लोग जिनको देखभाल के लिए हमने बोला था, उन्होंने देखा कि पूरे समय कुछ भी काम नहीं हुआ था, किसी ने भी वो जंगली घास नहीं निकाली थी। और जब हम वापस आए तो हमने देखा कि वो बच्चे आके इकट्ठा उन्होंने सब निकालना शुरू कर दिया, और मेरे लिए भी वो चीज़ बहुत मुश्किल थी कि अंत में इकट्ठा वो सारी जंगली घास को निकालना। To prepare to give Christ a proper welcome, the fruits of our labor must be the product of constant effort and not a last-minute cosmetic cover-up of long periods of inactivity. हम भी मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के आने का इंतज़ार करते हैं, तो हमें भी वो फल हमारे अंदर दिखने चाहिए, ताकि हम उसको ये दिखा सकें कि हम निरंतर परमेश्वर के काम में बने हुए हैं, और ये कोई आखिरी समय पे करने वाला काम नहीं है, और ये ऐसा काम नहीं है कि हम आखिरी समय में हम बैठें और आखिरी समय में इसको करने की कोशिश करें। Jesus' story makes me wonder how we would behave if we actually knew the hour of his coming. Would we be tempted to keep our metaphoric gardens in order, or would we keep our metaphoric gardens in order, or would we be tempted to wait until just before he arrived to make things appear to be perfect? तो यीशु मसीह की ये जो कहानी है, ये मुझे कई बार ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम किस तरीके से हमारा किस तरीके से बर्ताव होता जब हमें ये सही में पता होता कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं। क्या हम उस बगीचे के समान, अगर देखा जाए एक उदाहरण के रूप में, क्या हम उसके समान अपने जंगली घास को निकालने के लिए अंत तक रुके रहेंगे, या फिर हम निरंतर परिश्रम करते रहेंगे और परमेश्वर में बने रहेंगे? God intends for Christ to arrive and find us occupied in meaningful routine activity. We are to be calmly engaged in the work of God's reign and not to be embroiled in the panic of the chaos of this world or in frantically getting our house in order. तो परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं, परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम निरंतर प्रतिदिन उसके साथ जुड़े रहें, और आखिरी के समय में जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो आखिरी के समय में हम चीज़ों को ना करें, परंतु शुरुआत से ही अपने आप को उसके आने के लिए तैयार करें। Waiting is not easy if you have nothing to do. We have all experienced sitting in a doctor's waiting room with nothing to do but stare at a clock. इंतज़ार करना आसान बात नहीं है जब हमें
नहीं पता कि हम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हमने बहुत बार ये चीज़ को इस बात का अनुभव किया होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम वहाँ पे खाली बैठे रहते हैं और हम घड़ी को देखते रहते हैं। In the mid-1990s, my son Jacob and I emigrated from Canada to the United States and spent hours upon hours sitting in waiting rooms as we worked through the many steps in getting the proper documentation to stay in the United States. I learned to bring toys and books with which my son could entertain other children in the waiting room. We turned waiting into a celebration. Each time a person was called to their meeting, we applauded them. And when they returned to exit through the waiting room, we cheerfully waved goodbye. Engrossed in our activities, waiting created a welcoming community and became a taste of the sort of society that we hoped to belong. और ऐसे ही एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जो 1990s में जब मेरा जो बेटा है जेकब और मैं, हम लोग कनाडा से यूएस गए और वहाँ पे हमने जो वेटिंग रूम था वहाँ पे हम लोग ने घंटों बिताए और हम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे हमारे किसी कार्य के होने का। और उस समय में मैं खिलौने लेकर आई और मैंने किताबें लेकर आई ताकि जो मेरा बेटा है वो और बाकी बच्चों का मनोरंजन हो जाए। और उस समय में जब हम इंतज़ार कर रहे थे तो हमने वो जगह को एक तरीके का एक मनोरंजन का माहौल वहाँ बना दिया, जिसकी वजह से हम सब लोग आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ हमने समय बिताया। और जब कोई इंसान जाता था ऑफिस के अंदर तो हम उसको वेव करते थे, उसको हाथ हिलाते थे और उसको जब वो जाता था, और जब उसकी बारी आती थी तो हम तालियों के साथ उसको अंदर भेजते थे। तो एक तरीके का एक बहुत खूबसूरत माहौल वहाँ पे जब हम इंतजार कर रहे थे वहाँ बन गया था। In the same way, in this time of waiting, we can be like the fig tree's signs of new growth and thereby bring hope to others. और इस समय में भी हम लोग जब इंतजार करते हैं तो हम उस जो वो दृष्टांत है, जो अंजीर के पेड़ का दृष्टांत है, जब हम देखते हैं कि उसमें नई एक तरीके की उम्मीद जागी, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी दूसरों के लिए एक तरीके से आशा का कारण बनना है। In the ancient world, waiting was something that most people had to do. Those in power did not wait for others, but were waited on by them. As a result, patience, a form of self-control in which we do not meet delays or provocations with annoyance and anger, was considered a virtue of the elite. In Christianity, all of us are encouraged to develop the virtue of patience. तो पुराने समय में भी जो थे वो इंतज़ार जो था वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी और बहुत लोग इंतज़ार करते थे, परंतु जो लोग पावर में थे वो लोग इंतज़ार नहीं करते थे, परंतु लोग उनके ऊपर इंतज़ार करते थे। मतलब जब वो कुछ कार्य करेंगे, इस बात की आशा और उम्मीद में वो इंतज़ार करते थे। और धीरज रखना जो था वो एक तरीके से एक बहुत ऐसा चीज़ बन गया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपने आप को प्रोत्साहित किया। The 2nd century Christian, Justin Martyr, wrote that the strange patience of Christians in his Roman community intrigued people and motivated them to become believers. Let us then follow the example of the early church and in these troubling times remain calm, fruitful in the works of our faith, and practice this strange patience. And in doing so, let us honor our Lord and our God so that we can celebrate Christ's return rather than feel a sense of remorse
or anxiety. दूसरी सदी में भी जो जस्टिन मार्टियर जो थे, उन्होंने एक अजीब से धीरज के बारे में बात किया, धीरज रखने के बारे में बात किया, और उन्होंने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह धीरज रखें। तो आइए हम लोग भी उसी उदाहरण को अपने जीवन में रखें जो कि पहले की कलीसिया के द्वारा हमें दर्शाया गया है कि मुश्किल के समय में भी हमें ऐसी परिस्थिति में जब हम परेशानी में हैं तो आइए हम धीरज रखें और हम शांत रहें और हम अपने आप को तैयार करें यीशु मसीह के आने का, यीशु मसीह के आने का अपने आप को इस बात का एहसास दिलाएं कि हम शांत रहें और हर तरीके से हम अपने आप को इस बात में, इस आशा और उम्मीद में बनाए रखें कि यीशु मसीह जब आएंगे तो हम पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार रहेंगे। Let us end in prayer. God of wisdom, we call upon you. In this time of global troubles, when suffering seems to spread and deepen each day, grant us your wisdom so that we may remain calm and be patient in order that we remain active, healing rather than causing greater harm to those who are afflicted. May we feel the patience of Christ so that any anger or irritation that we feel is expressed in loving action rather than in rants and complaints. May we resist the temptation to blame others and instead ask ourselves what we can do to repair a broken world. In Jesus' name we pray. Amen.